சுவாமியினுடைய விசேஷம் சொல்லிட்டே போன மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் தேவைப்பட. ஆனாலும் முதல்ல ஒரு ஸ்லோகம், எல்லா ஸ்லோகத்துடைய கடைசியில அவருக்கு அடியனுடைய சமர்ப்பணை சொல்லி மத்ஸ்வாகதம் ஸ்ரீகரத்து விஜயகர பாரதி இது உத்தரார்த்தம் சொல்லுவா. இரண்டாவது லைன்ல முதல் ஸ்லோகத்து முதல் லைன்ல கவுண்டின்ய கோத்திரத்துல சுவாமியினுடைய பூர்வாசத்துல கோத்திரம் கௌண்டின்ய புஷ்பாஹ தனயா ராஜதானியும் சமாகதா. பாரம்பரியா கம்ப்ளீட்டா வேதாத்தியம் பண்ணவா. தோப்பனார் நேத்தி யாரெல்லாம் எஸ்சிபிசி பாக்குறாளோ பார்த்த பூர்வாசிரமத்துல குப்பா அவதானி சுவாமி சொல்ற வழக்கம். அவர் தான் பிரதானமா இருந்திருக்க தர்மகிரி பாடசாலைக்கு பிரதானமா இருக்காரு மலையில திருமலையில. ஹலோ வெங்கட நாயக்கா இன்னொரு பெரிய பாக்கியமா இருக்கும். எந்த சன்னிதில ஆச்சாரியால் இருக்காளோ அந்த சன்னிதில பெருமாள் இருக்க பகவான் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா. ஹலோ வெங்கட நாயக்கா இது சர்வேஷாம் ஞாதமேவ ததற்கு கௌண்டின்ய குப்பா தனயா ராஜதானியும் சமா விஜயாத்தில் வந்திருக்க சமாகதா மத்ஸ்வாகதம் ஸ்ரீகரோத் விதுஷேகர் பாரத் சுஜனஸ்ரீ சுப்பிரமணியா தோப்பனா பூர்வாசம் வேதவீதி விசோதகா. ஒரு பதத்துக்கும் அர்த்தம் எத்தாமத்தி சொல்றேன். மத்ஸ்வாகதம் ஸ்ரீகரோத் விதுஷேகர் பாரதி. எந்தெந்த சாஸ்திரத்துல பியாண்ட் வேர்ட் வாசாம கோச்சகா சமுத்திரம் சொல்லுவார். அந்த ரீதியில இந்த மாசம் 23ஆம் தேதி எங்க யூனிவர்சிட்டியில கிட்டத்தட்ட 3.5 மணி நேரம் இருந்தார். பெரியவா இருந்தாங்க, ஆச்சாரியா இருந்தா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் வாக்கியார் சாஸ்திரம் வந்தது. தர்க்க சாஸ்திரம் சொல்லுவா. அந்த சாஸ்திரத்துல வியாக்கரண சாஸ்திரத்துல வேதாந்த சாஸ்திரத்துல மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல எல்லா சாஸ்திரத்திலையும் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படியேப்பட்ட விசிஷ்டமா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆச்சாரியாவுடைய கம்பீரமான ஒரு பிரபாஷணம் இருந்திருக்கும். அனுகிரக பாஷம் இருந்து சுவாமி எம்பசைஸ் எடுத்து மினிமம் 4-5 சொல்ற வாக்கியம். அதாவது சம்ஸ்கிருதம் நாம தைவி வாக் அன்வாக்கியாதா மகர்ஷின்னு சொல்லக்கூடிய சம்ஸ்கிருத பாஷை ஏற்றத்தை பத்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லி நம்ம பரம்பரை பாருங்க வைதிக பரம்பரை. இந்த வைதிக பரம்பரையுடைய சிரேஷ்டத்தை 1 தடவை 2 தடவை 5-6 தடவை சொல்லி ஆச்சரியமான ரீதியில நிஜமாவே அந்த முகத்தை கிட்டாக சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் சுவாமி ஆச்சாரியவாள் முகத்துல வச்சா கண்ணு யாரும் எடுக்கல. அடைய பாக்கியம் இல்லை, நான் வெளியில ஊர்ல இருந்தேன். ஆனா ஃபுல்லா ப்ரோக்ராம் பார்க்க அவகாசம் கிடைச்சது. எங்க யூனிவர்சிட்டியில ஆச்சரியமான ரீதியில ஒரு பிரபாகரணம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அதனால அந்த விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி நியாய வேதாந்த நிஷ்டாக்காக அத்வைஷாக்கா பிரபாடகா கிருஷ்ணயஜுர்வேத பூர்த்தி அத்தியனம் பண்ணிருக்காங்க. மத்ஸ்வாகதம் ஸ்ரீகரோத் விதுஷேகர பாரத். சம்பிரதாயத்தை சொல்ற வழக்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேதா தேவவத்ஸ்யா உபாஸ்யா. இந்த 2 வச்சம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆச்சாரியா தான் பிரதானம். அந்த எந்திரமான காமிச்சு கொடுக்கறதே ஆச்சாரியர் தான். அதனால ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேதான வச்சனம் இருக்குது. அதை வச்சுதான் சுவாமி தேசன் சொல்ற தேவவத்ஸ்யா உபாஸ்யான்னு ஞாசம் விஷயத்துல 2ஆவது ஸ்லோகத்தை கடைசி வேர்டு. அதை பேஸ் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் ஆச்சாரியா இருக்காங்கன்னா நம்ம அனுகிரகம் பண்ணிருக்காங்கன்னா யார் இடத்துல பாரதி தீர்த்த சிஷ்யசன் சாரதாதேவி உபாசகா பிரதானமா இருக்கக்கூடிய ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய அடியன் போயிருக்கேன். அங்கேயே இருந்திருக்கேன். 2-3 வருஷம் அங்க சதசுல பார்க்க அந்த காலத்துல கேரளா இருக்கு போயிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஆச்சாரியா பிராச்சாரியான்னு சொல்லுவான். இந்த ஆச்சாரியா எழுத்தாங்க, இந்த ஆச்சாரியர் ஆச்சாரியார் பாரதி தீர்த்த சுவாமி. அந்த சுவாமியோட காம்பீரியம் சொல்லவே வேண்டாம். பாரதி தீர்த்த சிஷ்யசன் அதனால சிஷ்யன் சொல்ல ஆச்சாரியவான் புருஷோவை சொல்லிச்சு. அந்த நம்ம சம்பிரதாயத்தை எல்லாரும் தெரியும். ஞாச விஷயத்துல ஆச்சரியமான ஸ்தோத்திரத்துல அந்த சித்தம் சத் சம்பிரதாயம் கம்பீரமான ஸ்லோகம் ஆச்சாரிய லட்சணம் சொல்ற அத்தனை லட்சணம் புரிஞ்சிருக்கும். அதனால்தான் காரித்தே சாசிதாரம் சபரகிதபரம் தேசிகம் உள்துறை சேர்த்து சொல்ற சுவாமி. அடுத்ததுல 2வது ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியார் சேஷன் சொல்லிட்டு அவளை எப்படி கொண்டாடணும்னா தேவத்ஸ்யா உபாஸ்யா. அதே ரீதியில பாரதி தீர்த்த சிஷ்யசன் எங்க விசேஷமா அந்த உபாசன சாரதாதேவி உபாசகா ஸ்வாகத்தம் ஸ்ரீகரோத் விதுஷேகர பாரத். இன்னொரு விஷயம், ஆசிரமம் பிரதமம் தெக்வா துரியாசிரம சேவகா. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எக்ஸாக்ட்லி 23rd of January 2015 அன்னைக்குதான் 37வது பட்டத்துல அலங்கரிச்சிருக்கா இல்லையா? அதனால சொல்லுவேன் கூட அதனால ஆசிரமம் பிரதமம் தெக்வா துரியாசிரம சேவகா स्वागतं श्रीकरोतु विदुषेकர பாரத். इति रीत्या स्वागत पंचमति रीत्या तत्र नायं कविः सामान्य जनः केचन विषयाः प्रवृत्ताः आचार्य अनुकुर्वन्ति सप्रशं सत्सतं प्राप्ति. नाट्ययोग कलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथार्चिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरत
परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आज के दिन यहाँ भगवान बालाजी के मंदिर में आके भगवान का दर्शन प्राप्त किया, इसे हमें बड़ा आनंद मिला है। यहाँ कई सालों से भगवान का सानिध्य विराजमान है। यहाँ के सभी भक्तों के लिए भगवान बालाजी का दर्शन और भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए और लोगों में देव भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति को और आस्था को, इस सनातन धर्म के विषय में विश्वास को जागरूक करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस मंदिर की स्थापना यहाँ हुई है। कई सालों से इस मंदिर के द्वारा, भगवान के सानिध्य के द्वारा ये काम यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसे एक मंदिर में हम आज यहाँ आए हैं, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे मंदिर में आके भगवान का दर्शन प्राप्त करना और भगवान की कृपा का पात्र बनना हर एक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है। हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में 3 मार्ग कहे गए हैं। एक है कर्म मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है ज्ञान मार्ग। इनमें शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो ज्ञान मार्ग होता है वो अंतिम है। ज्ञान मार्ग मतलब तत्व को जानना, जो वास्तविक तत्व है उस तत्व को जानना, इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। और उस तत्व को जानने के लिए भगवान की कृपा हमें अवश्य ही चाहिए। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता है। तो ऐसी कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए भगवान की भक्ति मार्ग जो है, भगवान का भक्ति मार्ग जो है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में विशेष रूप से भगवान की आराधना जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार भगवान की आराधना, और कर्म मार्ग जो है उसमें हमारे लिए जो भी कर्म शास्त्रों में विहित हैं इनका आचरण करना। जो गृहस्थ होते हैं, जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ऐसे एक एक आश्रम के लिए और इस प्रकार एक एक विभाग के लिए हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी कर्म विहित हैं इनका आचरण करना जो है इसको कर्म मार्ग कहते हैं। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में कर्मों का आचरण और भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना, इसे अच्छी तरह करने से भगवान की कृपा पूर्ण रूप से हमें मिलती है। तो उसके द्वारा तत्व का ज्ञान हम प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो 3 मार्ग है इनमें से हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार एक के बाद एक इस मार्ग में जाकर भगवान की कृपा का पात्र बनकर हमें मोक्ष प्राप्त करना है। यही इस मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है। मानव जन्म का मकसद यही है कि मोक्ष प्राप्त करना। कदाचित कुछ लोगों को एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त करना कदाचित संभव होगा या नहीं होगा, परंतु उसका प्रयत्न जो है उसको जब हम शुरू करेंगे तब उससे ही हमारा जीवन सार्थक होता है। तब उसके द्वारा हम इस जन्म में जितना संभव है उतनी साधना हमें समाप्त करके और आने वाले जन्मों में भी इसी साधना को हम अनुवर्तित करके इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसीलिए हमसे जितना संभव है उतना अवश्य ही भगवान की आराधना करना है, इस मार्ग में जाकर इस जीवन को सार्थक बनाना है। इसीलिए जगतगुरु आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने भी उनका जो अनेक उपदेश है उनमें से एक प्रसिद्ध उपदेश ये है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस विषय के बारे में, भक्ति जो है इसके बारे में शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में अनेक जगहों में भक्ति के बारे में शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। यहाँ भज गोविंदम और भगवतो भक्ति दुर्भाग्यताम ऐसा उन्होंने कहा। और एक जगह में उन्होंने कहा भक्ति किम न करो जहो वनचरो भक्ता तमसायते। जो भक्त का न भक्ता उनकी बात को लेकर उन्होंने ऐसा कहा भक्ति किम न करो ही अहो वनचरो भक्ता तमसायते, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार कई जगहों में जो भक्ति
भक्ति है, भगवान की भक्ति है, उसकी महिमा के बारे में आज शंकराचार्य जी ने बार बार उपदेश किया। और कर्म मार्ग जो है उसके बारे में तो वेदों नित्यमधीयताम तदनितम धर्मस्वनुष्ठीयताम इत्यादि वचनों में उन्होंने कर्म मार्ग का भी उपदेश किया और विशेष रूप से ज्ञान मार्ग का उपदेश तो उन्होंने किया ही। इसके बाद इसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हर एक मनुष्य का भी एक कर्तव्य होता है, इसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक होता है। तो उसके लिए भगवान की कृपा, ऐसे मंदिर में भगवान की कृपा का पात्र बनकर इस जीवन को सार्थक बनाना है, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। जो सभी भक्त लोग यहाँ हैं, सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, सभी लोगों को मंदिर में जब आते हैं उस समय में हमें भी आना है और हमारे बच्चों को भी साथ में लाना है। इस बात को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम आते हैं हमारे साथ में बच्चों को भी लाना चाहिए। बच्चों को भी ये जो संस्कार है, ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसका परिचय, इसका ज्ञान उनको भी मिलना चाहिए। जब हम ऐसे मंदिर में आते हैं, जब हम किसी भी मंदिर में भगवान का जहाँ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पूजा होती है, ऐसे जहाँ भी मंदिर में हम जाते हैं, जो हमारी पारंपरिक देवता है, जो शास्त्रों में कहे गए हैं, ऐसी देवताओं के मंदिर में हमें जाना है। और जहाँ शास्त्रों के विधान के अनुसार पूजा इत्यादि उत्सव इत्यादि होते हैं, वहाँ हमें जाना है। और वहाँ जब हम जाते हैं बच्चों को भी साथ में लेके जाना है। ये जो परंपरा है, जो संस्कृति है, इसका ज्ञान और परिचय उनको भी मिलना चाहिए। और भगवान के सन्निधि में जो श्लोक या तो स्तोत्रों का पाठ हमें करना है, उसे भी बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इसके द्वारा भगवान की कृपा सभी बच्चों को मिलती है। तो उसके द्वारा उनके जीवन में सभी प्रकार की भलाई मिलती है बच्चों को। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं हर एक माता और पिता उनके बच्चे जो है उनको सभी प्रकार की भलाई हो, चाहे उनको कष्ट हो, परंतु हमारे जो बच्चे हैं वो सुखी रहना चाहिए, उनको सुखी होना चाहिए, उनको जीवन में अच्छी तरह आगे आना चाहिए। इसी को सभी लोग चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमारे बच्चों के ऊपर हमें प्यार है, प्रेम है, तब हमें सबसे पहले उनको धर्म का शिक्षण देना चाहिए। धर्म का शिक्षण अगर हम देते हैं, एक अच्छा संस्कार हम उनको देते हैं, तो उससे सब कुछ उन बच्चों को मिल जाता है। हम कितनी संपत्ति देते हैं ये मुख्य बात नहीं होती है, जितना संस्कार देते हैं यही सबसे मुख्य विषय होता है। क्योंकि अगर हम अच्छा संस्कार देते हैं, तब हम जितनी संपत्ति को देते हैं उससे भी 100 गुना संपत्ति वही स्वयं कमा लेते हैं। ये संस्कार के द्वारा होता है। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना भी बहुत बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं। तो ऐसे इस जीवन को सार्थक बनाकर हमारी जो धार्मिक परंपरा है इसका आचरण करें, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो इस मंदिर के निर्वाह के कमेटी में है, जो इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, यहाँ के जो भक्त हैं आज यहाँ मौजूद हैं, आप सबको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, आपको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये।